'ਚ सिर्फ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। करिए जी शुरू। मेरे सत्कारयोग साथी ते श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के सरप्रस्त सरदार रणजीत सिंह बरपुरा जी और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, उन्होंने भीम आर्मी बीबी स्वर्ण कौर सरप्रस्त, श्री ML तोमर जी प्रभारी पंजाब, श्री राजीव कुमार लवली जी प्रधान आज़ाद समाज पार्टी, सरदार बूटा सिंह प्रधान श्रोमणी अकाली दल किरती, जनाब मकसूद उल हक कौमी सकत्तर इंडियन मुस्लिम लीग और मास्टर अवतार सिंह प्रधान जनता दल सैकुलर और एक मिनट जी सरदार मनविंदर सिंह सूबा प्रधान जनता दल यूनाइटेड और कमर हरवीर सिंह ढींडसा उन्होंने जन सकत्तर ने जनता दल यूनाइटेड के, वो भावें साडे नाल पहलां भी आ चुके हैं पर उन्होंने आए ने, मेहरबानी। एक तो सब नूं बेनती है प्रैस वाले वीरां नूं कि ये पार्टियां, क्योंकि लोगों की पंजाब के लोगों की एक इच्छा है कि एक ऐसा फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਨਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਨਪੁਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ
जिथे इन्हां सारे साथियों का धन्नवाद करदा। सरदार इंद्रजीत सिंह हुरी एडवोकेट, इन्हां ने बड़ा बड़ा रोल अदा किया। इन्हां दा भी बहुत बड़ा रोल है, इन्हां दा भी धन्नवाद करना। और जिन्ने भी होर सज्जण आए ने उन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदा। कई नाम भी रह गए होणगे पर फिर भी उन्हां दा नहीं। इन्हां दे हुण 5-5 मिनट मैं बेनती करांगा कि आज़ाद ग्रुप वालों पहला तुसीं पहला करनी कि बाद च कर लो? हाँ कर लो, पहला इस तो पहला कि आज़ाद समाज ग्रुप वाले गल करना अपनी, मैं बनपुरा जी नूं बेनती करदा साडे सरपरस्त ने कि वो भी गल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो प्रधान साहब होरां ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अज जो पंजाब के हालात ने उन्हां तो आपां सारे बहुत चंगी तरह वाकफ हैं। कांग्रेस पार्टी जने रवायती पार्टियां दे विचों कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है ते बादल के जो इन्हां लोगों ने पिछले समय दे विच जो पंजाब दा बेड़ा गर्क किया, अज लोग तैयार बर तैयार ने उन्हां दे खिलाफ ने, उन्हां दे खिलाफ फतवा देना चाहुंदे ने। सो इस काम लई अज वो सज्जण अज साडे नाल आए ने, खास करके सरदार बूटा सिंह जी ने और बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े बड़े कुर्बानी वाले लीडर जिन्हों ने लम्मा समा बाबू जी होरां दे नाल काम किया। और उन्हों की सत्कारयोग भैन जी ते होर भी बहुत सारे जिहड़े ने सज्जण आए ने, उन्होंने अज साडे नाल हथ मिलाया, साडा हौसला बढ़ाया और उन्होंने भरोसा दिता कि आपां रल मिल के ये जिहड़ा एक फ्रंट है इहनूं कामयाब करिए ते आउण वाले समय दे विच पंजाब दी जिहड़ी विगड़ी किस्मत है इहनूं सुधारन दी कोशिश करिए। सो इहदे वास्ते आपां सारे इकट्ठे होए हैं। महाराज मेहर करे, कृपा करे, दया करे, सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਦੇ सिर ते हथ रखे ते ये जिहड़े दुष्ट आ जिन्हां ने माड़े काम कीते ने हुण माड़े दस्सण लगिए ते चिर बड़ा लगना ते इन्हां दा बेड़ा बनने लगे ताकि लोग सुख शांति दे नाल रह सकन अते पंजाब दा जिहड़ा विकास है आर्थिक तौर ते पंजाब कंगाल हो गया वा ते ये नवें सिरे तो ये जिहड़ी सोने की चिड़ी है सोने की चिड़ी बने। इन्हें कई के थे मैं जाच का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो बिना कि मैं अजे गल करा होर बाकी गल्लां फिर करांगे। मैं बीबी जी नूं गल करांगे, बीबी स्वर्ण कौर जी जो श्रीमान काशी राम जी दे सत्कारयोग भैन जी ने, वो तुहाडे नाल विचार पहला 2 मिनट साझे करनगे। हाँ जी कर दें। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਕਾਰਾ नहीं छड्डना, जकारा छड्डना चाहिए। बोले सोनिहाल जकारा तार करो तार ठीक है चल जी। करी हो रही मेरे को सारे सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम। मैं इस करके इस जगह पर मैंने आना पाया कि मेरे वीर जी ने तो राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी साडे वास्ते, पर वो राष्ट्रीय पार्टी खेल हो गई कि मैंने बहुत दुख है कि साडी पार्टी एडी बड़ी पार्टी होके राष्ट्रीय पार्टी होके साडी खेल पार्टी हो गई कि सानू साडे दुख सुनने वाला कोई है नहीं। तो असीं चाहुंदे आ कि हुण असीं इकट्ठे होइए, अपना दुख साझा करिए ते असीं अपने दुखों का हल करिए ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे रहना चाहिए। तो असीं पावर विच आवांगे कि साडे पावर होगी तो असीं अपने दुखों का हल करांगे।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਚੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਇੱਥੇ बोल रही है कि मेरा वीर जी का एड्डी बड़ी पार्टी का मालिक था। उसने सारी जिंदगी समाज बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, पर वो पार्टी खेरू खेरू हो गई। तो उसका भी मैंने दुख आ। पर हुण जे असीं चलो थोड़ियां छोटियां पार्टियां इकट्ठे हो जाइए तो अपनी पावर बनाइए तो अपने दुखों का हल करिए। इस करके मैं चाहती हाँ कि मेरे वीर जी रामू वाले मैं इहदे पर मैंने पूरा भरोसा है कि ये हल करेगा। तो इस दे नाल मैं पूरी सहमत हाँ कि मेरा वीर जी बहुत चंगे सुभाव का ते इंसाफ वाला बंदा है। इस करके मैं चाहती हाँ कि सारे सानू इकट्ठे होना चाहिए, कल्ले कल्ले नहीं रहना चाहिए। कल्ले कल्ले रहेंगे तो असी खिंडेरे बिंडेरे रहेंगे, साढ़े पर होर पार्टियां का वो रहेगा, उन्होंने अपनी मन मर्जी करनी जिस तरह होम होंगी है। मोदी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, ऐसे सारिया पार्टियां साढ़े पर दबाव पा रही हैं। जे असीं इकट्ठे होवांगे तो असीं उन्हां दा मुकाबला करांगे, सानूं इकट्ठे होने की लोड़ है। जय भीम, जय काशी। मैं बहुत बीबी जी का धन्यवादी हाँ कि इन्होंने जो मिशन बाबू काशी राम जी ने शुरू किया सी, एक ऐसी पार्टी बना के देश में बहुत बड़ा नाम कमाया सी और यूपी सरकार भी बनी 2-3 बारी। तो उन्होंने फेरू फेरू करने वाले उन्होंने खिलाफ इन्होंने एक जदोजहद शुरू की है। और मैं पंजाब के प्रभारी इस पार्टी के श्री तोमर साहब ने बेनती कराँगा, वो भी 5 मिनट तुहाडे नाल प्रेस नाल बेनती कोई अपनी गल करेंगे। तोमर साहब वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम। सबसे पहले हमारे सरप्रस्त हम सबके रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा जी और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, सुखदेव सिंह ढींसा साहब, जगदीश गर्चा जी, बलवंत सिंह रामोवालिया जी, रणजीत सिंह तलवंडी जी, मकसूद हक जी, बूटा सिंह रणसिंह जी, अवतार सिंह जी, और हमारे बीच में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय संरक्षक बड़ी बहन स्वर्ण कौर जी, हमारे सभी साथियों। आज भीम आर्मी पिछले 5-6 वर्ष से पूरे देश में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। उसी की वजह से आज दुनिया की जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है टाइम्स, उसमें 100 बड़े लोगों में भारत में पहले नंबर पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आया है। आज ढींसा साहब ने एक अच्छी पहल की है कि जो संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कानून का राज हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आज जिस प्रदेश को संतों गुरुओं की धरती समझा जाता था, आज उस धरती पर धर्म के साथ भी किस किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी जरूरी है कि यहाँ एक जो गठबंधन था
पहले एक गठबंधन था अकाली और बीजेपी का, जिसने पूरे देश के किसानों की दशा ये कर दी कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवादी हूं पंजाब के लोगों का कि पंजाब के लोगों ने एक सरकार को चेताने के लिए अगर 10 महीने से ये टोल टैक्स भी बंद कर रखे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाले समय में ये गठबंधन एक चुनाव का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विचारों का गठबंधन है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व कायम करने वाला गठबंधन है। और हमारी मुलाकात हुई है गर्चा जी से और ढींढसा साहब से, तो हमें अपनत्व जैसा लगा कि अपने छोटे भाइयों को साथ में लेकर इस पंजाब की दिशा और दशा दोनों को बदलने की चाह रखते हैं। और लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव इनको है। तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमने वो बात उनके सामने रखी और उन्होंने उसे सहज स्वीकार करके ये कह दिया कि मेरा यूपी में एक जरूरी कार्यक्रम लगा हुआ है गठबंधन से संबंधित ही, इसलिए आप राजीव कुमार लवली और आपकी पूरी टीम जो गठबंधन कर रही है, मैं उसकी सहमति, और मैं अभी इनके बाद में या पहले जब आप आदेश करेंगे टेलीफोन पे उनसे बात भी करा दूंगा और उनकी पूर्ण सहमति है। और आजाद समाज पार्टी कांशीराम पूरे पंजाब में इस गठबंधन के लिए दिन रात एक करने का काम करेगी, अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और जो माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, उसके अनुसार पंजाब को चौमुखी विकास करने का काम करेगी। मैं ऐसी आशा विश्वास के साथ आज बहुत बहुत सबको बधाई देते हुए, आभार प्रकट करते हुए सबको मैं जय भीम करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तुमका। हूँ मैं बेनती करूँगा कि इन्हों के प्रधान लवली जी कि वो भी अपने कुछ मिनटों लिए विचार पेश कर। लवली जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। मंच के विराजमान ब्रह्मपुरा साहब, ढींढसा जी, रामोवालिया जी, बूटा सिंह जी, साडी पार्टी के सरप्रस्त और बहुजन मूवमेंट ਨੂੰ देश चलाने वाले साहब कांशीराम जी की भैन जी बीबी सरन कौर जी, आजाद समाज पार्टी पंजाब के प्रभारी ML तोमर साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सकत्तर पंजाब हक साहब, सर रंजीत सिंह तलवंडी जी और सारे सत्कारयोग साथियों और मेरे पत्रकार भरावों, अज जड़ा तीजे मोर्चे का गठन पंजाब के विच कीता जा रहा है मानयोग ढींढसा साहब की अगवाई। मैं विश्वास दवाना ढींढसा साहब नूं और सारे तीजे फ्रंट के जिन्ने भी साडे पार्टी के अहुदेदार बैठे ने, आजाद समाज पार्टी ते भीम आर्मी जिथे दिन पर रात पहला भी मेहनत करके पंजाब के अपने लोगों को जगाने का काम कर रही है। आने वाले 2022 के जिहड़े पंजाब विधान सभा के इलैक्शन उस दे विच पंजाब नूं इन्हां रवायती पार्टियां तो खड़ा छड़ा के जिन्हां ने तकरीबन पिछलियां जिहड़ियां 2-3 सरकारां गईयां ने, इन्हां ने पंजाब का वो घाण कीता। चाहे पंजाब की जवानी है, चाहे पंजाब की अदर पॉलिसीज ने, पंजाब किहड़े पासे नूं लैके गए है, इस सारी दलदल चों पंजाब नूं कट्टण दे लई
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਸਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, मैं सबका द्वारा फिर धन्यवाद करदा और विश्वास माना प्रधान जी नूं ढिंडसा जी नूं भी असीं 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ।